3 मिस्टेक्स बतानी हो जो पेरेंट्स करते हैं जब बच्चों को कॉलेज में एडमिशन करा रहे होते हैं तो वो क्या है? थ्री इडियट्स देखिए ना आपने। बिल्कुल। तो जो फरहान के पेरेंट्स का हाँ, हाँ। रिएक्शन होता है ना, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रांड कौन सा है, आपका ब्रांड कौन से शहर में है, ब्रांड में जो पियर्स हैं आपके उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनकी को क्या क्वालिफिकेशंस है, एंड देन फोर्थली लाइक व्हाट इज द करिकुलम दैट इज टॉट यू। बट द फर्स्ट थिंग दैट पेरेंट्स शुड एक्चुअली आस्क देयर किड्स इज कि यार व्हाट इज द ब्रांच दैट यू वांट टू चूज। 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉलेज मॉडल्स एंड न्यू कॉलेज मॉडल्स लाइक पोलरिस। न्यू एज आर जनरली ऑल्सो मोर एआई फर्स्ट देन ट्रेडिशनल। 12वीं का एग्जाम हुआ है ना, दैट फैमिली शुड एक्चुअली टेक अ ट्रिप। दे शुड टेक अ ट्रिप टू वॉट एवर कैंपस दैट दे आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। कॉलेज डिसाइड करना इज नॉट रियली अ किड्स responsibility. I think post grad is what students should decide. Undergrad is what parents decide. Any parent who does not really spend time on deciding undergrad, they are doing a very big disservice. What do you think who produces better outcomes, India या फिर global? इंडिया से बाहर जो लोग जाते हैं ना, वो 4 रीजंस की वजह से जाते हैं मोटा मोटा। द फर्स्ट रीजन इज at the rate of growth that opportunities are happening in India, I don't think there is any other country. Imagine you are going to an undergrad program spending 200,000 USD, which is roughly 2 CR, and 4 years later you don't even have a visa. Now I'm against that philosophy that college kids should go and work in Starbucks and Subways and McDonald's. Less than 5% have been from IITs and IITs, BITS, DC, all combined. और आप खुद IIT से हो। What determines your overall success over the next 10 years is not your degree. Welcome Mukul bhai to Schoolcast with Avyakt. Thank you for having me here. It's a pleasure having you because जो ये टाइम पीरियड है it's very crucial for every 12th student and their parent because हर कोई रेस में भाग रहा है, कौन से कॉलेज में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे चूज करना है। तो आज आई होप ये एपिसोड से हम ब्रेक डाउन कर पाएँ हर उस इंसान के लिए जो ये फिगर आउट कर रहा है। No, absolutely. Would love to chat on this. To begin with, can you please introduce yourself? I went to a college called IIT Roorkee. Cleared JEE exam in 2009, I think now. Yeah, and then 2013 I graduated. 1.5 years back, we started Polaris. तो क्लास प्लस जिस दिन प्रॉफिटेबल हुआ था, आई थिंक उसके हमें करना हमेशा से था, बट वी सेट कि यार like we are already doing class plus and that's our core company that we started with, software company for YouTubers and content creators and educators. Like almost every teacher in the country knows what ClassPlus is now, thankfully. So we said, after ClassPlus 5, like we'll do one more delta moving thing in life, which was Polaris, and we said we want to build a higher education in campus where like people would actually come and do a very experiential kind of learning. जो 3 Idiots में लास्ट में दिखाते हैं ना, रैंचो का एक स्कूल होता है। So we said कि अगर रैंचो का स्कूल कंप्यूटर साइंस के लिए होता तो वो कैसे दिखता। तो पोलारिस जैसा। तो हमने कहा कि चलो पोलारिस बना के देखते हैं। लाइक वी विल गो विद दैट आइडियोलॉजी दैट रैंचो इन 3 Idiots हैड, व्हिच वाज लाइक एक्सपेरिमेंटेशन एंड बिल्डिंग एंड लर्निंग ऑन द गो एंड लर्निंग बाय डूइंग थिंग्स एंड लर्निंग फ्रॉम लाइक peers and learning from and experiment and like fearless experimentation. So I said यार that is when we started Polaris, and the moment class was turned profitable, I said कि यार ठीक है, now we can do this at a gradual pace without any kind of pressures, and yeah, that is where we are in 2026 now. So it's been a journey. इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने IIT रुड़की से पढ़ा है। IIT अपने में ही एक इंस्टीट्यूशन अलग है, उसके बाद आप एजुकेशन में इतने सालों से हो। सो नाउ यू स्टार्टेड दिस कॉलेज ऑल्सो विच इज़ अ स्पेशलाइज्ड कॉलेज। तो क्या आपको लगता है कि जो सेफ कॉलेज पाथ है दैट इज़ आउटडेटेड? आई थिंक इट इज़ वेरी मच। सो कॉलेज ना 2 काम करते हैं देश में। तो कॉलेज सबको जाना होता है, जाना तो है ही, बिकॉज यार इंडिया ना हिस्टोरिकली सर्विस कंपनी है, सर्विस इंडिया लाइक हाउ डू आई से सर्विस इकोनॉमी, ठीक है। आई थिंक इंडिया में अगर आप देखोगे तो बचपन में पढ़ाया जाता था कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी सर्विस। टर्शरी में सर्विसेज आती हैं, एंड आई थिंक आफ्टर एजुकेशन और हैंडीक्राफ्ट्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स, आई थिंक सर्विस सेक्टर इज द मोस्ट द सेगमेंट विच गिव्स द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट टू इंडियंस। तो हिस्टोरिकली सर्विसेज मतलब जॉब्स होते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, ठीक है, वो इसलिए वो थोड़ी सी कैपिटलिस्ट भी है, बट इंडिया वॉज ऑलवेज अ सर्विस इकोनॉमी, एंड दैट इज वाई टू क्रैक सर्विसेज मीन्स कि यार तुम्हें कोई ना कोई वाइट कॉलर जॉब क्रैक करनी पड़ेगी। तुम्हें किसी एक शॉप में या फिर किसी एक इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी एक MNC में या किसी एक कंपनी का बेसिकली हिस्सा होना पड़ेगा। एंड लाइक व्हाट डू कंपनीज लुक फॉर? They look for like how long have you been educated, how well you have been educated, and where have you studied from. So that is why in India that became a very big norm. इस US में नहीं है। US में अगर कोई हाई स्कूल का बच्चा कहता है कि मेरे को कॉलेज नहीं जाना और मैं कल से XYZ करना चाहता हूँ, तो बड़ा एक्सेप्टेबल हो जाता है। इंडिया में बिकॉज वो 50 साल का माइंडसेट है कि यार बाय डिफॉल्ट तो मोस्ट पीपल थिंक यार सर्विस में जाना पड़ेगा, सर्विस में जाना पड़ेगा तो जॉब करनी पड़ेगी, जॉब करनी है तो
कॉलेज जाना ही Degree पड़ेगा, चाहिए, ठीक है. yeah. एंड दैट इज वेयर डिग्रीज आर वेरी रिस्पेक्टेड एंड वांटेड इन इंडिया. Yeah, कि कुछ भी हो जाए बट 12वीं पास नहीं रह सकता कोई. लाइक एवरीबडी वांट्स टू गो Yeah. कॉलेज बिकॉज वन आपकी हायर एजुकेशन में इट बिकम्स अ प्रीरिक्विजिट. सेकंड आप किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जाओ वहाँ पे इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. एंड थर्डली लाइक इवन सोसाइटली Safety इट इज एज्यूम टू ऑल दैट सेफ्टी है नहीं कुछ. समझते हैं. हाँ, ये परसीव्ड सेफ्टी है Yeah. कि यार बीटेक हो जाएगी तो जॉब लग जाएगी. इनफैक्ट ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है. मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थिंक गूगल ऑल्सो हैड नो क्राइटेरिया ऑफ डिग्रीज इन देयर हायरिंग. दे वर लाइक कि इफ यू कैन कोड एंड इफ यू कैन कोड ब्यूटिफुली तो तुम चाहे 25 साल के हो, 30 साल के हो, चाहे एडुकेटेड हो नहीं हो, चाहे तुम टियर 1 सिटी से आते हो, टियर 2 सिटी से आते हो, चाहे तुम कन्नड़ा बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. Yeah. ठीक है. बट ऐसा परसेप्शन इंडिया में है. तो ऐसा नहीं है कि यार कॉलेज से जिंदगी शॉर्ट हो जाती है. बट हिस्टोरिकली कॉलेजेस लाइक इंडियन सेंड देयर किड्स टू कॉलेजेस एंड दैट इज फाइन. What you do inside your 4-year campus or 4-year education, that is far more important than where you go into. To be honest, and I come from IT and that's why I can say it. Did everybody who came into my batch at IIT Roorkee become successful in life? Of course not. Absolutely not. Yeah. You will be surprised. It just does not look nice when I say those numbers, but यार काफ़ी अच्छी परसेंटेज की जनता होती थी जिसकी उस टाइम पे भी जॉब नहीं लगी. बिकॉज कंपनी इज कमिंग इन एंड देर सेइंग यार ठीक है तुमने जेई क्लियर किया, तुम 10 लाख में उस टाइम 10 लाख बच्चे देते थे, 15 लाख देते हैं कि 10 लाख में से तुम तो अब 10,000 बच्चों में बहुत अच्छी बात है. तो दैट मीन्स पोटेंशियल इस्टेब्लिश्ड है. बट 4 साल तुमने किया क्या है, वहाँ से तुम्हारी प्रैक्टिस या परफॉर्मेंस इस्टेब्लिश्ड है. Yeah. सो लाइक ग्रेट पोटेंशियल बट विद नो performance or no practice is useless. Yeah. But even like average potential with like great practice becomes like a great performance. Yeah. So it required like ठीक है, you had an advantage, you had an edge. कि यार companies में तुम्हें round 1 clear हो जाएगा, they will give you more chances than usual people. But is तो like going to an IIT at that point also was necessary, not sufficient. Yeah. कि it's good to have. Once you're there, you'll get an advantage and you'll get some opportunities. But cracking those opportunities is Yeah. in your own hands. So बहुत देसी भाषा में like in a very crude language, I say that going to a good college is just like getting access to net practice. But how good a cricketer you become is actually dependent on how you play in the real match. Yeah. Immaterial कि आप net practice में जो भी कर लो, वहाँ उसका contribution, उसका weightage इतना ही है. Ultimately, like you are evaluated and respected by the number of runs you score in the actual match, Yeah. not in your nets and all. So useless तो मैं नहीं कहूँगा, but it thoroughly depends on which campus do you go to. Actually 4 factors. Which campus do you go to? Okay. In which city is that campus in? Which city is that campus in? Yeah. What do your peers, what kind of peers are you surrounded by? And what is the curriculum that is taught to you? Okay. आपका कौन सा ब्रांड है. 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका ब्रांड कौन सा है, आपका ब्रांड कौन से शहर में है, आपके ब्रांड में जो लाइक कॉलेज के ब्रांड में जो पीयर्स हैं आपके, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनकी को क्या क्वालिफिकेशंस हैं. एंड देन फोर्थली लाइक व्हाट इज द करिकुलम दैट इज टॉट टू यू. एंड देन यू कैन ऑन दीज 4 फैक्टर्स इफ यू थिंक दैट यू आर टेकिंग द राइट चॉइस, यू आर इन अ ग्रेट कैंपस. नो, आई वॉज गोइंग थ्रू अ रिपोर्ट रिसेंटली, तो उसमें एक पाई चार्ट था कि अगर ये पूरा पाई चार्ट है, द पाई चार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, अगर 100 लोग हैं तो उसमें 70% और प्रॉब्ली मोर वर द पीपल हु हैड अ डिग्री, और जिनके पास डिग्री नहीं थी वो उस 30 में कहीं ना कहीं लाई करते थे. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. हाँ यार, इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ. हमारी ना क्लास प्रेस अ सॉफ्टवेयर कंपनी. Yeah. We are probably one of the biggest software products in the world in education. And I think we would have hired more than 500 engineers, software engineers in our lives. You will be surprised to know if I ask you, and I come from IIT Roorkee. Yeah. So you would obviously think यार 500 software engineers लाइफ में हायर करें, तो यार IIT से भी करे होंगे, IITs, NITs, DC Yeah. BIT से. क्या लगता है आपको, what percentage of our hirings have been from let's say these top colleges? Top of the mind, I think more than 50%. More than 50%? Yeah. It's a little lower number. 50% से थोड़ा कम है. 45, 40, और कम है. 35, और कम है. 25, और कम है. 15, और कम है. 10, और कम है. 5%, और कम है. 3%, 2%. Something around that. Oh. Out of 500 engineers that we have hired in life, less than 5% have been from IITs, NITs, BITS, DC, all combined. और आप खुद IIT से हो. Despite the fact that, and it's not like that we didn't want to hire them. Yeah. A lot of them would have appeared and sat in the interviews. Yeah. But then the questions that we asked in the interviews, they had no inherent advantage of answering them. Because those questions were hardcore about कि यार, do you know how to write code? Do you know how to push this code to a production database?
Do you know how to take this product live onto the internet? Do you know when downtimes happen, like what are the top reasons for it? Can you really write a code and show to us? And उनका आंसर क्या होगा कि यार नहीं, हमारी ऑल इंडिया रैंक फलाना ढिमकाना आई थी. हाउ डू आई डू व्हेन यू सिट इन द कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड यू से कि मेरी आईआईटी की रैंक फलाना ढिमकाना आई है, तो क्या वो कोड लिख देगा? नहीं लिखेगा. यू स्टिल हैव टू गो एंड डू दैट एफर्ट. एंड वो आते नहीं था किसी को. सो दैट इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग दैट दोस किड्स आर बैड. Yeah. They've just not learned the trade that they are appearing for. Yeah. So if you want to play a sport, if you want to go for swimming trials, you better have swum in your life. If you have never swam, you can never qualify for a swimming trial. And I think today, like Class Plus as a product and just in itself, I think we see like 15-20 lakh daily users and like more than 2 crore monthly users, which means a lot of traffic. It is one of, I'm telling you, it's one of the biggest education platforms in the world, and it is built 99% by non-IITians. And Wow. that is what I've realized over the last so many years, that it's great. Like, but what determines your overall success over the next 10 years is not your degree. Your degree is like a launch pad है. वो आपका फर्स्ट ब्रेक है कि यार वो यश आर्ट फिल्म्स का एक ब्रेक मिल गया है, धर्मा प्रोडक्शंस का एक ब्रेक मिल गया है, तो आपका फर्स्ट लीप हो सकता है, फर्स्ट ब्रेक थ्रू हो सकता है. बट आपको दूसरी मूवी मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हाउ योर फर्स्ट मूवी परफॉर्म्स. एंड आई थिंक दैट इज वेरी ट्रू इन लाइक all top notch professional careers. So, and that is why you would see that a lot of film stars, even if they don't come from Yeah. Film families. film families, or let's say a big banner is not launching them, Still they succeed. still go and make like really successful careers. And the number of those artists is only increasing every year and every year and every year. Yeah. आज से 20 साल पहले शायद ऐसे 1 या 2 आर्टिस्ट होते थे, 10 साल पहले शायद वो 4, 5, 10 होते थे, अब ऐसे हंड्रेड्स है. बिकॉज नाउ इन टुडेज वर्ल्ड लाइक companies only care for your performance and not care for your potential. No, this is very interesting. जो भी ये बच्चा सुन रहा है या उनका पेरेंट सुन रहा है, तो वो आज तक ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी बात करते हैं अपने घर में, रिलेटिव्स में, तो उन्हें यही सुनाई देता है कि आईआईटी के हो तो जॉब मिलेगी. और यहाँ एक आईआईटी रुड़की का फाउंडर है जिन्होंने जो आईआईटी से हायर ही नहीं करते. मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. आपको जो आपने बोला ना बिल्कुल सही है कि आप, क्योंकि कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है? मिलती इन्फॉर्मेशन है गली मोहल्ले में, बात होती है Correct. शाम को खाने का बिल्कुल. वॉक करते हुए, या रिश्तेदारों से बात होती है सोशली फंक्शन में, बिल्कुल. या फिर नेबरहुड की किटी पार्टीज में आंटियों की बात होती है इस टॉपिक पे, या फिर डैड्स के ऑफिसेज में लंच ब्रेक पे बात होती है. Yeah. इन्हीं कुछ जगहों पे बात होती है इस एजुकेशन में. एंड बाय द वे आई रियलाइज दैट व्हेन पेरेंट्स टॉक टू ईच अदर, चाहे वो अपने पीयर से बात करें, रिलेटिव से बात करें, अपने नेबरहुड फ्रेंड से बात करें, 70-80% टाइम, मतलब मैंने ये देखा है कि मतलब 50% टाइम एजुकेशन की बात होती है और 50% टाइम रियल एस्टेट के प्राइसेस की बात होती है. बिल्कुल सही ठीक बात है? है. या फिर स्टॉक मार्केट की रैंडम बहुत सरफेस लेवल वाली बात होती है. तो यही 2 टॉपिक्स है जो सबसे कॉमन मैंने देखे हैं कि ठीक है. एंड दैट इज द रीजन जब आप ये बोलते हो ना कि यार ये सब सुनाई देता है, स्टूडेंट्स को लगना शुरू हो जाता है, यार एक्चुअली बच्चों को नहीं लगता. आई थिंक कॉलेज डिसाइड करना इज नॉट रियली अ किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपका किड इतना स्मार्ट है कि वो 17-18 साल की एज में अपना कैंपस, अपना प्रोग्राम, अपना चॉइस खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, देन यू आर अ लकी पेरेंट. Yeah. ठीक है? यू शुड लाइक रियली अप्रिशिएट योर किड. यू शुड फील वेरी लकी. You should be very grateful कि you have raised a very wonderful child. But let me tell you, 8 out of 10 people, 8 out of 10 students do not know what they want to do till they're 18. And a lot of them don't even come to know later on also, and which is also fine. And ऐसे में फिर वो choice किसकी है? Like I think parents think कि यार उनकी choice है कि यार स्कूल पढ़ा दिया, कोचिंग की फीस दे दी और फिर कॉलेज की फीस दे दी. आई एम लाइक कि जितना दिमाग आप लगाते हो कि यार फीस देने में या फिर मतलब फाइनेंसिंग करने में कैसा लगना है, आई थिंक उसका अगर 20% effort parents start putting in how to identify the undergraduation of postgrad. I think deciding postgrad is a kid's choice because Yeah. by that time he's an adult, he or she is an adult. They start making their own money. They've gone into the world. They're more exposed. They're also more serious in life, and they've gone through that entire adolescence period. I think postgrad is what students should decide. Undergrad is what parents decide. And any parent who does not really spend time on deciding undergrad, they're doing a very big disservice to देयर किड्स. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ. मुझे फॉर एग्जाम्पल 11 तक नहीं पता था कि आईटी क्या होता है. ठीक है? थैंकफुली माई पेरेंट्स न्यू व्हाट आईटी इज एंड दे ऑलवेज वांटेड टू. सो आई हैड गॉन टू अ फैमिली ट्रिप एंड पीछे से मेरा किसी एक जेई कोचिंग में एडमिशन करवा दिया था उन्होंने. ठीक है? Thankfully to them, I came to know about IIT. Otherwise, I had zero idea what IIT is. Yeah. Next 1.5 years, I prepared for IIT. Luckily, I basically got selected. And then came कि यार ब्रांच और कैंपस चूज करना है.
तो वो पेरेंट्स ने मुझ पे छोड़ दिया बिकॉज दे थॉट कि यार नाउ आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट ना, बिकॉज मैं तो हाँ, जेई में रैंक इतना आ तो गई, चूज कर ही सकता इतना है। तो कर ही लेगा। अब पता है मैंने कैसे कैंपस चूज़ किया था? मैंने कैंपस चूज़ किया कि यार देखो रैंक अच्छी आई थी, कुछ 1013 रैंक थी मेरी ऑल इंडिया, तो मेरे को सारे कैंपसेस ही मिल रहे थे, मतलब बॉम्बे भी में भी कुछ ब्रांच मिल रही थी और यहाँ पे भी कुछ ब्रांच मिल रही थी। मैंने कहा देखो बॉम्बे बहुत दूर है और दिल्ली बहुत पास है, क्योंकि मैं दिल्ली में बॉर्न एंड बॉटअप था, तो मैंने कहा बिल्कुल उसी कॉलेज में कैसे रह लो जिसमें मतलब आपका शहर है, क्योंकि यू लाइक यार थोड़ी इंडिपेंडेंस चाहिए, थोड़ा ऑटोनॉमी या चाहिए। सो एज अ 17 ईयर किड आई वांटेड टू गो अवे फ्रॉम माय होम टाउन, या ठीक है, बट आई डिड नॉट वांट टू गो सो अवे कि यार मतलब एक्सेसिबल ही ना हो। एंड उस पॉइंट पे मेरे को लगता था कि यार बॉम्बे जाएंगे तो मतलब फ्लाइट से जाना पड़ेगा। यार मैं मिडिल क्लास का बच्चा हूँ, मैं उससे पहले जिंदगी में 2 बार फ्लाइट्स में बैठा था। आई यूज टू थिंक यार फ्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो यार मैं बॉम्बे से तो अपने घर पे आ ही नहीं पाऊंगा, और अगर मेरे को कुछ आना होगा तो यार अननेसेसरी फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा फ्लाइट्स एंड ऑल का, तो यार बॉम्बे नहीं जाएंगे और दिल्ली नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो बहुत पास है। एलिमिनेशन ऐसे हो रहा था। हाँ, देन सेकंड बात आती है कि आप ब्रांच कौन सी लोगे, तो समबडी सेड की कंप्यूटर साइंस ले लो, बट मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही थी। या एंड नीट मतलब वो जो बाकी ब्रांचेस थी सिविल मैकेनिकल, उसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो वन ऑफ माई कोचिंग टीचर सेड कि यार आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, आप फिर कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो और आप कुछ और भी कर सकते हो। मेरे को 4 साल बाद समझ में आया जब तुम कोई ऐसी चीज़ कर सकते हो ना, जब तुम एक्स भी कर सकते हो और वाई भी कर सकते हो, तो वो जनरली वैसी चीज़ होती है कि ना तुम एक्स कर सकते हो ना ना तुम तो वाई कर भाई सकते कर, दोनों नहीं करनी चाहिए। हो, दोनों ही नहीं करनी चाहिए। या तो ऐसे कि यार लाइफ में ना मुझे या तो कंप्यूटर साइंस को फिक्स कर लेना चाहिए था, या फिर मुझे कैंपस पे ऑप्टिमाइज करना चाहिए था, या तो मैं या लाइक आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस या कुछ ऐसा चले जाता, या फिर मैं आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस चला जाता। बट आई शुड हैव टेकन एन एक्सट्रीम एंड वेरी डिसाइडेड एंड फिक्सेटेड एंड पर्टिकुलर चॉइस। या आई शुड नॉट हैव ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है, बिकॉज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इज नन ऑफ आइदर वर्ल्ड, या especially in education and like important choices in life. And ultimately, what did I choose? I chose electronics in IIT Roorkee. I don't think that was the best combo that I should have done. Luckily, life has turned out well. या So again, no regrets. But no regrets does not mean that I could not have done better. Like if I go back at Yeah. the age of 17, 18 when I cleared IIT, I would have taken some other choice, some other combo. या I would have not done the exact same thing. इफ यू प्रॉब्ली हैड मोर इन्फॉर्मेशन या Absolutely. कुछ ज्यादा अब वो कहाँ दिमाग से से आती? या वो कहाँ से आती? एट दैट पॉइंट लाइक ओनली लाइक माई सराउंडिंग्स, अब सराउंडिंग में ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने आईआईटी कभी क्लियर किया था। Yeah. आई थिंक इन माई नेबरहुड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट। टुडे टुडे फॉर्चुनेटली पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, या internet is accessible, like social media is out there, chat gpt is out there now, research has freaking become so easy। या वेरी वेरी इजी। गूगल सर्च नहीं करना है यार, मतलब पेरेंट्स तो समझते होंगे, जितने पेरेंट्स से टीचर से देख रहे हैं, हम लोगों ने तो इंक्लूडिंग मी एंड यू, वी हैव सीन दोस टाइम्स जहाँ पे गूगल सर्च करना वो यूज्ड टू बी अ कम्बरसम टास्क। या एक घंटा लग जाएगा आपको एक एक चीज़ सर्च करने में, और फिर भी समझ में नहीं आएगा ये जेन्युइन है ये राइट है। तो अब आपके पास बहुत कुछ, आपके सोशल मीडिया, आपके नेबरहुड्स हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेसिडेंट्स, इंडिया एज अ इकोनॉमी हैज ग्रोन, Yeah. यू हैव जीपीटी, यू हैव टूल्स। इफ यू स्टिल आर टेकिंग द सेम ओल्ड चॉइसेस दैट ओल्ड लाइक वॉज टेकन इन ओल्ड टाइम्स। ओल्ड टाइम्स में कैसे चॉइस लेते थे पेरेंट्स कि यार मेरे को अपने बच्चे को कौन से कॉलेज में भेजना है, अरे वो मिश्रा जी के बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं ना, तो वहीं पर वहीं पर भेज भेज दो, दो, वो सही अपने जान पहचान वाले हैं। या अरे मेरे ऑफिस में गुप्ता जी भी हैं, अग्रवाल जी हैं, इनके बच्चों ने यहाँ से किया था तो तुम भी। एवरीबॉडी सेइंग कि यार उन्होंने वहाँ भेजा था, नोबडी इज आस्किंग कि वहाँ से बच्चे करके क्या निकले, लाइक Yeah. what did the student actually gain out of it, like what did they become after going? It's like saying it's like me celebrating I am going to the gym. या That is not celebration worthy. Celebration worthy is my physique better, is my muscle mass, am I gaining muscle mass, Yeah. are my habits better, is my blood test coming out to be better? But people are like just in higher education, like parents just celebrate inputs. आई थिंक हर्ड मेंटालिटी हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही कोर प्रॉब्लम है। या Full on, and I think nothing more than this. या अब जो आपने ये सारी बातें बताई कि पेरेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं, बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है व्हेन दे आर 17 18। इन शॉर्ट अगर हमें 3 मिस्टेक्स बतानी हो वो जो पेरेंट्स करते हैं जब बच्चों को कॉलेज में एडमिशन करा रहे होते हैं, तो वो क्या है? सबसे पहली चीज, पेरेंट्स डोंट आस्क किड्स इफ दे वांट व्हाट इज द ब्रांच दैट दे माइट बी इंटरेस्टेड इन। ओके यार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एवरीथिंग इज सेकेंडरी, बट व्हाट यू आर डूइंग, देखो ठीक है आप एक कैंपस में चले गए, आपको उसका ब्रांड है, मतलब ठीक है यू विल फील हैप्पी। सो इन इंडिया लॉट ऑफ पेरेंट्स आल्सो वांट टू सेंड देयर किड्स टू लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल आईआईटीज, या कि बिकॉज इट्स अ सोशल स्टेचर, या it's a big signaling on the parent, because when a parent's child goes into IIT, पूरा मोहल्ला, पूरे रिश्तेदार, पूरा दफ्तर आ जाता है मिठाई खिलाने और सेलिब्रेशन। मैंने देखा है ना अपने साथ होते हुए कि तो इट जस्ट पेरेंट्स को इतना अच्छा ही लगता है ना। तो जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जिनकी लेट से एक लोअर रैंक आई है, उनको एक न्यू IITs में कोई रैंडम ब्रांच मिल रही होगी कोई IIT XYZ में, सिविल नहीं है बच्चे का बन जाने का, ठीक है। बट इफ दे कैनॉट गो इन टू देयर होम्स एंड से कि यार आई वॉन्ट टू ड्रॉप आउट,
There Polaris में, for example, I'll give you an example. 2 years back when we started, like in the first batch, there was a student who wrote an email to me, Okay. and long email, but I'll just send you the highlights of it. उसमें था कि यार मेरी ना आईआईटी में कुछ ऑल इंडिया 1400 समथिंग रैंक आई है. आई हैव गॉटन एन एडमिशन फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एंड बट मेरा कुछ मेडिकल इशू हो गया, तो मेरे को भी 1 महीने का टाइम मिला, एंड आई एम नाउ थिंकिंग कि आई वांट टू बिल्ड अ कंप्यूटर साइंस करियर. तो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि बॉम्बे में क्या है, और मेरे को नहीं जाना किसी रैंडम ब्रांच में. कैन आई कम टू पोलारिस? Obviously, I was like, this is not decided on a mail. So he gave the Polaris test and all. And obviously, he was a bright kid. So he cleared all the tests. The hardest thing for him was not to clear the test. The hardest thing was for him to go and talk to his parents that I want to drop out IIT without even entering it. Yeah. I think he realized that it would take him more effort to convince his parents to drop IIT than it took him to clear IIT in itself. Yeah. And obviously our teams also, like parents wanted to speak to us like कि ये कौन सा कैंपस है and why are you going here and ये तो अभी स्टार्ट हुआ है and यहाँ पे क्या होगा. And the kid was very clear कि मेरे को तो देखो कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना है, so that's why I want to come to Polaris. Parents were absolutely and understandably so, they were not happy with us. They were not happy with the team. Of course. And they're like ये तुम अच्छे वो 3 Idiots देखिए ना आपने, बिल्कुल. तो जो फरहान के पेरेंट्स का हाँ, हाँ. रिएक्शन होता है ना, राजू रस्तोगी और फरहान होके फरहान जब वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने जाता या है, पेरेंट्स का सेम रिएक्शन है कि यार ये क्या करवा रहे हो तुम, ये तो बच्चा है, तुम इसको कह रहे हो कि यार करियर बन जाएगा, इसको क्या समझ है, ये तो गलत है. And we told the parents, trust us. Like if he's so passionate about, and that kid showed us that he had been building some software tools since the age of 9th class, like 14-15 years. So like यार इस बच्चे में अगर इतना इंटरेस्ट है, and if he's so bold and so brave, like he'll do something good in his life, right? So he told his parents and trust us. Parents वही अनकही मतलब अनचाही मर्जी जो होती है, with like a lot of grudges and qualms, they were like ठीक है, if the kid is wanting to go, but they were not very happy, and we could see that. Yeah. 1 year later, that kid got an internship opportunity. He basically cracked a global program called Google Summer of Code, Okay. and as a reward, he got to work with an international group of developers, a company, and his stipend for 8 weeks, which is 2 months Yeah. of summer internship, was around $3,000, which was उस टाइम पे $80 mid 80s में होता था, तो About 2.5 lakh rupees. yeah, more than that. Yeah. And you know, the kid was obviously very happy. We were very happy कि भाई किसी का हमने मतलब like we had made a promise that this kid will do well, and now he has created at least as good an outcome, if not better, because first year 2 months internship, international organization, and like 2.5 lakh rupees of stipend. ये तो ना IIMS में होता है यार, मतलब बिल्कुल. अंडर ग्रेजुएशन में तो होता भी नहीं है ये. Yeah. So the kid was happy, the campus was happy. I was waiting for something. That thing actually came later in the day. His dad actually messaged me on Instagram, and he said, "Kiar, thank you for making the bright future of our kid, and now we are very happy." And I was like, "कि हाँ, अब ये खुश हैं, मतलब because now it shows, and now he also trusts his kid way more because सबका ही contribution है ना, parent का contribution है because they let go of their old school thoughts and allowed their kid to do. Kid का contribution है because he also realized कि यार I have to now prove myself because I've taken such a radical choice. हमारा contribution because we have sold a promise and we have to deliver on that. Yeah. And right, and like everybody in that team, they also know that this is so important because we also become more confident of what we are teaching. And I think that is the kind of mindset I think which is very required. So the first thing that you asked, I think it's a long story that I told you, but the first thing that parents should actually ask their kids is कि यार what is the branch that you want to choose? Do you want to become a computer science engineer? Do you want to become an astronaut? Do you want to build cars in life? Do you want to play some instrument? Whatever it is, ठीक है? I think the first thing is do branch, ठीक है? Okay. Which is the conversation of what branch of engineering or whatever you want. Yeah. The third is your own research. Because होगा क्या? This is a topic which parents don't know a lot about. So they have a very strong tendency to go to their relatives and offices and neighborhoods and ask. And किसी को कुछ नहीं पता. Because यार आप ऐसे सोचो ना, a typical parent of a 17-year-old kid is 45 to 50 years of age. Yeah. Typical. They would have gone to college at 18. तो 30 years back. 25-30 साल पहले college. So 25-30 साल पहले की वो उनका जो माइंड फ्रेम है वो 25-30 साल पहले का ही है. एंड वो जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो भी वही है, क्योंकि वो भी तो
रिसर्च के मीन्स ही गलत हैं। हाँ सेम ही लोग हैं ना। बिल्कुल। अब वो तारक मेहता पे वो जो अब्दुल की सोडा शॉप पे लोग खड़े हैं वो सारे सेम ही एज के हैं। हम्म, तो अगर वहां पे बात चलेगी कि यार मतलब कौन से कॉलेज में भेजना है तो सबका ही रेफरेंस पॉइंट 25-30 ईयर्स ओल्ड है। सो नोबडी रियली नोज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। या ठीक है, एंड आई थिंक दैट इज वेयर लाइक पीपल शुड, पेरेंट्स शुड स्पेंड टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम इन consuming content from, let's say, whether it's YouTube, whether it's reviews, whether it is GPT, whether it is anything else. या But that own research is very important before you go and talk to other people. अगर आपने पहले बाहर बात कर ली और फिर अपनी रिसर्च करने जाओगे तो आपकी जो बाहर की सुनी हुई बातें हैं they will always impact you to prove your research wrong. But if you do your research first and then basically hear everybody, you will be able to better ask questions. या Then you will not ask कि यार शर्मा जी आपका बेटा गया कहाँ, आप पूछोगे यार शर्मा जी आपका बेटा कॉलेज गया था ना, वो सेकंड ईयर में क्या कर रहे हैं इंटर्न पे। अब शर्मा जी अगर उस पर कहेंगे कि हाँ उसकी तो इंटर्न लग गई और ये वेल पेड इंटर्न है और ये इस फलाना कंपनी में है, तो अच्छी बात है। बट अगर शर्मा जी कहेंगे कि यार वो तो कहीं नहीं कर रहा, वो तो घर पे बैठा हुआ है, तो फिर आपको पता है कि यार इस वाले शर्मा जी को फॉलो नहीं करना है। बेटर वैलिडेट कर पाओगे। एग्जैक्टली, अदरवाइज वो शर्मा जी बोलेंगे कि हाँ वो तो हैदराबाद की कॉलेज में चला गया था और आपका होगा कि हाँ हम भी वहीं भेज देते हैं। एंड हैदराबाद में ऐसा कुछ भी जगह हो सकती है। ठीक है, आई थिंक दैट इज सेकंड। द थर्ड थिंग आई थिंक दैट पेरेंट्स शुड डू इज दैट दे शुड कम एंड विजिट द कैंपस, विच यू विल बी सरप्राइज यार। अगर लोग करते ही नहीं, लोग एफर्ट ही नहीं मारते। मुझे समझ में नहीं आता उन्हें, लाइक दे नो दैट their kid has to spend like 4 years. This is one of the most important choices. This is an irreversible choice. It's an expensive choice also. Parents just do not be in that physical space where the campus exactly is. And I'm like यार वो चाहे बैंगलोर का कैंपस हो, चाहे वो यूएस का कैंपस हो, चाहे वो आयरलैंड का कैंपस हो, यार अ पेरेंट शुड टेक, लाइक पेरेंट्स एंड देयर किड एंड देयर सिबलिंग whoever it is, ऐसा ना मेरे को लगता है कि हर एवरीबडी हु जिसका भी 11वीं 12वीं का एग्जाम हुआ है ना, दैट फैमिली ट्रिप, दैट ट्रिप शुड एक्चुअली, वो सॉरी, दैट फैमिली शुड एक्चुअली टेक अ ट्रिप एंड दे शुड नॉट टेक अ ट्रिप टू अ हिल स्टेशन और अ हॉलिडे स्टेशन। दे शुड टेक अ ट्रिप टू वॉट एवर कैंपस दैट दे आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। तो अगर उनको लगता है कि यार मेरे को ना लंदन में जाके साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, लेट्स से हाइपोथेटिकली, और हमें मतलब दैट इज वेयर वी आर थिंकिंग द मोस्ट एंड वी आर मोस्ट इंक्लाइंड, यू शुड गो एंड लिव फॉर अ कपल ऑफ वीक्स इन साउथहैम्पटन। तुम्हें वो शहर भी समझ में आ जाएगा, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको यूनिवर्सिटी का पूरा लाइक वाइब चेक भी समझ में आ जाएगा। यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी द इंफ्रा एंड मेक योर ओपिनियन ऑन इट। यू विल ऑल्सो be able to talk to alumni of that campus, क्योंकि if your kid is going in first year, there would be there would be a crowd who is in second year, third year, fourth year, and when you talk to them, they are the real customers. या आप उनसे जाके पूछोगे कि यार how are like what is your exposure, what is your industry learning, what is क्या कहते हैं your opportunities, what are your batchmates doing, and if all of them are happy and successful, then you know this is a great place for a kid. Similarly, अगर आप एक tier 2 इंडिया के टाउन में और if you're choosing let's say Bangalore for your kid, यार क्या जाता है आपका कि आप एक हफ्ते जाके पूरे परिवार के साथ बैंगलोर घूम के आओ ग्राउंड रियलिटी समझो। लाइव। वो कहते हैं ना एकदम लाइव संवाददाता, मतलब यू हैव टू हैव अ लाइव व्यू, यू हैव टू हैव अ रियल परसेप्शन। यू डोंट नीड अ परसेप्शन, you need a reality, and reality can only be witnessed, it cannot be heard. Once you are in that place, once you are on ground, you exactly know कि हाँ this is the campus, this is how it looks like, these are the faculties, this is what the curriculum is, these are the students, this is what they have done in the past, these are the extracurriculars that are happening, these are the industry collaborations that are there. कुछ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है ना। एंड कितना एक्सपेंसिव है, मतलब इफ यू, एंड बैंगलोर के पास बात है कुछ अच्छे हिल स्टेशन भी हैं। सो आप एक हफ्ते की ट्रिप बनाओ, आप 3 या 4 दिन बेसिकली आप कैंप सिटी में रहो, आप अपना कैंपस देखो, अपनी चॉइस करो, अपनी डिबेट्स करो, आपको जो भी रिसर्च करनी है, एंड देन 3 days बेसिकली go around. It's a great city, it's great weather, enjoy, and then go back to your hometown. But I'm like, yeah, people don't, and I'm telling you, for a middle class family, doing this entire thing will not require more than, let's say, 70,000-80,000 rupees. मतलब शायद ये हो जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब इकोनॉमिकल ट्रिप बनाते हो तो शायद मैक्सिमम लाख रुपए में एक पूरा हो जाएगा। You are anyway going to pay an amount which is 10, 20, 30 times of that into your 4-year fees. बट Should आप you know? ये पैसे बचा रहे हो जो But- आप इन्वेस्ट करके वो पैसे शायद बचा सकते हो। ये वही वाली बात होगी कि मैं अच्छी गाड़ी ले लूंगा बट मैं उस पर इंश्योरेंस नहीं लूँगा। हम्म, इंश्योरेंस पहले लेना चाहिए, उसके बाद गाड़ी लेनी चाहिए, बिकॉज यू रियलाइज कि भाई आई ऑल्सो हैव टू लिव विद दिस डिसीजन। या ठीक है, यू कैन नॉट कट कॉस्ट ऑन रिसर्च, यू कैन नॉट कट, उसके लिए अगर आपको एक हफ्ते ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ रही है तो प्लीज़, दैट इज टाइम इन्वेस्टेड नॉट Yeah. टाइम स्पेंट। you know, I call it that 1 week that you will take off, I call it the best birthday present you can give to your 18-year-old. या And every kid expects कि यार like parents will give me like one special 18th birthday gift.
I don't think there will be, like, as a kid, probably they won't appreciate it right away. But I can tell every parent who's watching this that when your kids are 30 or 35, at that point they'll come to you and say, yeah, that was the best 18th birthday present I could have ever gotten. And that is why you should do it. Like, kids might appreciate it, not appreciate it today, but that is where you have to apply your brains and you have to be a little more sincere and practical and say, ki, yaar, we have to do this. For example, Polaris, mein, like, some kids actually came who had offers from University of Pennsylvania and NYU पे थे, Princeton के offers थे, ठीक है? And they basically said कि नहीं यार, we are not going there, we are probably coming to Polaris, ठीक है? I think one of the biggest reasons they got very excited about Polaris and said no to like US universities, जो सबका मतलब dream was, and these are some of the top universities, because when they came to the campus and when they saw the real atmosphere and they saw the vibe around, they were probably convinced कि हाँ यार, this is, we don't really need to go so far across a different country and pay so heavily in dollars, plus visa का unpredictability है, AI के layoffs हो रहे हैं की वजह से, and obviously like it is expensive and dollar is also like getting stronger and stronger day by day. So they're like, yeah, maybe that's a great place, but it comes with its own cost of staying away from home and immigratory issues and employment issues. But this is a place which is equally good. But they could not have taken this decision. And like most of those kids, by the way, Avyak, all those kids who have left, let's say, a prestigious international admission, all of them have done very well at Polaris. Very, very well. Matlab, all of them would have done like multiple internships. Most of them would today be able to self-fund their fees by the freelance projects or the internships or the gigs that they're doing in the industry. Some of them have won national competitions. Some of them have cracked the world's most competitive global program competitions. You know why they are doing that? Because they know what they have left. Yeah. They know that we have taken a contrarian choice. We have said no to what a lot of families in India think is the default and the best possible state. So उन्होंने वो ideal state छोड़ी है, उन्होंने वो popular state छोड़ी है, उन्होंने वो एक popular choice छोड़ी है, and then they've gone and that makes real character out of them also. Because at 18 now that they know कि यार हमें किसी और को prove नहीं करना, हमें खुद को prove करना है कि भाई we have taken the right choice in life. Then they do real well. जब मैं कॉस्ट को कंपेयर करता हूँ इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल की, तो मुझे खुद समझ नहीं आता है कि ये सही है कि नहीं है. आई द ओनली प्लेस वेर आई अप्रिशिएट माई कॉलेज इज द नेटवर्क आई हैड, द फ्रेंड्स आई मेड. Exactly. वही है और कुछ नहीं है. सो व्हाट डू यू थिंक हु प्रोड्यूसेस बेटर आउटकम्स, इंडिया या फिर ग्लोबल? सो देखो, आउटकम्स ना दो तरीके से होते हैं, ठीक है. वन इज एक्सपीरियंशियल आउटकम्स, ठीक है, एंड everybody should actually like do this exercise when they are sitting with their kids. One is experiential outcomes and the other is called financial outcomes. ओके. ठीक है. मैं बता देता हूँ आपको, इंडिया से बाहर जो लोग जाते हैं ना, वो 4 रीजंस की वजह से जाते हैं मोटा मोटा. द फर्स्ट रीजन इज टैग ऑफ द कॉलेज. यार वो ना मतलब टैग होता है कि यार हार्वर्ड, प्रिंसटन, वॉटन में चले गए, मतलब वो ना टॉप 10-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं. उसके अलावा तो देखो और कोई टैग होता नहीं. उसके अलावा तो जोग्राफी का टैग है. तो इंडिया में होता है ना विलायत, फॉरेन रिटर्न, इंटरनेशनली एजुकेटेड, ओवरसीज एजुकेशन. ये बड़े फैंसी वर्ड्स हैं इंडिया में, मतलब क्योंकि लाइक 90s एंड 2000 में दिस वाज वेरी एंड उस पर भी आएंगे कि 90s में बहुत मतलब 90s एंड 2000s में बहुत पॉपुलर था. मैं ऐसे बोलूँगा कि पेरेंट्स की एज उनका वर्ल्ड भी उसी टाइम पे बना है. तो वी विल कम बैक लेटर कि यार पहले बहुत पॉपुलर थे, अब क्यों नहीं हो रहे इतने. सो पहला रीज़न तो आपका सीधा टैग आता है. दूसरा आता है कि यार अ लॉट ऑफ पेरेंट्स थिंक यार लेट्स गिफ्ट आवर चाइल्ड सम सॉर्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल. कि यार हम तो नहीं कर पाए वेकेशन. कि यार यूएस जाएगा, यूरोप जाएगा, तो थोड़ा सा घूमेगा, थोड़े से लोगों से बात करेगा, थोड़ी पर्सनालिटी डेवलप होगी, थोड़े ट्रैवल एडवेंचर्स होंगे, तो द लाइफस्टाइल पार्ट ऑफ इट. द थर्ड इज बेसिकली व्हेन दे से कि यार opportunities or exposure, let's not even opportunities, exposure कि यार internationally education is far more liberal and far more hands on. So when you go into a campus, like you will meet industry people. So अगर आप एक marketing का course कर रहे हो, so probably some CMO will come and take your class, or some founder who is building a let's say D2C product will come and teach you how did they do pricing, how did they do wrapping, how did they do positioning and stuff. So that is one particular thing which is very good in international universities, that you are generally studying from people who have already done what you want to do next. And the fourth is opportunities. Okay, people think that in general international countries have far more opportunities than India. परसेप्शन है. परसेप्शन है. और ऐसे शायद 25 साल पहले शायद अभिव्यक्ति ये सही भी था, ठीक है. बट अब मैं आपको ना 4 पॉइंट बताता हूँ 2026 में क्या चल रहा है.
इफ यू टॉक अबाउट टैग, लाइक वो टैग सिर्फ उन्हीं फाइनाइट लोग को मिलता है, बट एंड मोर इंडियंस आर एवरी ईयर अप्लाइंग फॉर दोज टॉप 5-10 यूनिवर्सिटीज. योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर गोइंग इवन डाउन. सो इट्स ऑलमोस्ट impossible that you will get a admit in your desired branch from your desired university. So tag तो है ही नहीं. अब आप करते हो लाइफस्टाइल की बात करते हो, that lifestyle has become very expensive because Very, of very expensive. अब dollar has, like last week dollar was like 95 plus, right? So and you know no care over the next 4 years where that goes. So that lifestyle one becomes very expensive. Plus yeah, across the world the kind of, because there is a job crisis, and during those times like stuff like alienation or partiality or the skin color of your thing, लाइक दैट बायस ऑल्सो कम्स इन. तो कहीं वो एक्सट्रीम रेसिज्म होता है, कहीं वो लाइट डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट दैट होता हर जगह. वो होता मतलब है यार, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कंट्री एंड दे ऑब्वियसली वांट टू प्रायोरिटाइज देयर ओन पीपल मोर देन एनीबडी एल्स. सम कंट्रीज आर ग्रेट, सम आर नॉट सो ग्रेट, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग एवरीवेयर. थर्ड आता है कि यार आपका एक्सपोजर आता है, एक्सपोजर टू कंपनीज, एक्सपोजर टू, बाय द सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं. While international lifestyle has another advantage of you in a different geography and being able to travel, India में the advantage of lifestyle is क्या, you are closer to your parents, you have your Comfort. friends. ठीक है यार 18 to 22 is not just about college and academics and career, it's also about your chemistry and your friendships Yeah. and basically who you, मतलब 10 में से 9 लोगों से पूछोगे ना कि कॉलेज का फेवरेट मोमेंट क्या है, वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरी वो क्लास थी, वो बोलेंगे कि यार हम दोस्तों के साथ जाके ये करते थे, हमने दोस्तों के साथ जाके ये गेम खेले, हमने नाइट आउट मार के गेमिंग खेली है. एंड वो सब ना कॉलेज के बाद मज़ा भी नहीं आता करने में. बिल्कुल. वो ऐसी चीज़ है कि आप कॉलेज में ही कर सकते हो और वो कॉलेज में ही बहुत अच्छी लगती है. एंड दोज आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट हाईलाइट्स. एंड यू ऑल्सो बिल्ड योर पब्लिक पर्सोना एंड योर पर्सनैलिटी ड्यूरिंग दोज टाइम्स. सो इंडिया में वो एडवांटेज होता है बिकॉज नाउ यू आर लाइक ऑल्सो यू हैव योर ओन सर्कल्स एंड यू मेक न्यू सर्कल्स. प्लस यू हैव कन्वीनियंस एंड लाइक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर कंपैरेटिवली सॉर्टेड इन इंडिया. थर्ड थिंग आती है एक्सपोजर. तो यूएस में होता था कि यार इंडस्ट्री के लोग आके आपको पढ़ाते हैं. यार वो तब होता था क्योंकि इंडिया में उतनी सक्सेस स्टोरीज थी नहीं. इंडिया में ना उतनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज बनी थी, ना उतने बड़े स्टार्टअप्स बने थे, ना उतने ब्रांड्स थे. आज की डेट में इफ यू लुक एट इट, इंडिया हैज़ लाइक more than 100 unicorns, so many larger companies, so many independent content creators, so many researchers. So getting access to those people is not very uncommon. मैं एक बार स्टैनफोर्ड गया था, मैंने क्लास ली थी वहाँ पे, एंड लकीली वो क्लास एक फिनेंस की थी, मर्जर्स एंड वैल्यूएशंस पे थी. And later I got to know that the respected professor who was taking the class was also the MD of a investment bank on Wall Street. Okay. So he was he was a legend, right? So 25 years पहले ऐसे लोग इंडिया में होते ही नहीं थे, बट आज बहुत हैं. So if you are studying computer science, then there are a lot of software companies who have done really big, and some of those founders are actually in Bangalore. So if you go into a right campus, you will have some of the guest lectures from and visiting faculty from that spectrum also. So that is also solvable in India. And the fourth basically comes the most important point. Like apart from tag and lifestyle and exposure, ultimately what matters is the opportunities. See, 90s and 2000s mein US and all were growing like anything, and they had a shortage of skilled workers. So they opened their doors and said कि यार दुनिया भर से टैलेंट आओ सब आ जाओ. और यहाँ पे बहुत बहुत काम है करने के लिए. और उनकी जनता तो मतलब तो वो कम थी, प्लस वहाँ पे एडुकेशन वाज नॉट रियली एज मच, उतनी एडुकेशन इंक्लिनेशन नहीं थी. So they needed workforce. They needed skilled workforce. They needed cheap workforce. They needed talented workforce. And they needed hard-working workforce. Yeah. US में अगर आप जाओगे ना तो 70% जो इमिग्रेंट्स हैं, या मतलब जो ये 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो या तो इंडियंस हैं या चाइनीज़ हैं. Two hardest working people and communities in the hard work and intersection of intelligence. अब वो हो गया. Like they have built that ecosystem. Probably now in the age of today where AI is automating so many jobs, Oracle के भी 30,000 ले ऑफ्स हुए हैं. मतलब Oracle मतलब बहुत सी साइजेबल कंपनी है. इट इज़ वन ऑफ द 15-20 मोस्ट पॉपुलर टेक ब्रांड्स इन द वर्ल्ड. Yeah. एंड पता है ब्यूटीफुल बात क्या थी, Oracle ने कहा है कि हम ले ऑफ्स इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉस्ट कम करनी है. They said we just had our best year, we just had our best quarter, our profit margins are record breaking. It is the best financial outcome that we have ever seen. But we are still doing layoffs, not because we want to reduce cost, but because we think that technology can do this work cheaper, better and faster. And it was a clear statement from them that we are choosing to spend money on machines than humans, not because we are short of money, but because we have a lot of money and we only want to do things which we'll think better. यार वो जो AI and तो जितनी है tech and US being a tech first economy, like because of these layoffs and all, new opportunities have become even harder. And on top of that, मैंने lifestyle में एक point बोला नहीं था जो मुझे अब याद आया. You also have immigration Issues everywhere in the world. Compared to 10 years back, when if you go there and you study,
तुम्हारा वीज़ा ऑलमोस्ट पक्का था, तो काफ़ी लोग तो ये सोचते थे कि यार पढ़ाई कर ली तो बहुत अच्छी बात है, नौकरी लग जाएगी, और नहीं भी नौकरी लगी तो चलो वीज़ा तो है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे वहाँ पे। Yeah. अब वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे का तो ऑप्शन ही नहीं है। वो भी बहुत बड़ा डाउट है। हाँ, वो कुछ ना कुछ आप तभी कर सकते हो जब आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे। टॉप यूनिवर्सिटीज़ को मैंने बताया वो तो टॉप 5% या 2% किड्स हैं जिनका होता है। तो अगर आप लाइफस्टाइल के लिए जा रहे हो तो आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छी नहीं होने वाली, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली यू विल नॉट गेट अ चांस टू गेट अ वीजा विच कैन एक्सटेंड योर लाइफस्टाइल देयर, एंड नाउ यू आर पेइंग सो मच मोर फॉर दैट। Yeah. कमिंग बैक टू द फोर्थ पॉइंट विच वॉज द आउट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस, तो एंड ऑब्वियसली वहाँ in those countries employment, like because those are US economy grows at like what 2%. Yeah. So the opportunities are also created at that rate compared to in India, where like companies and startups and technology is like growing leaps and bounds every single, like हर 2 साल में कोई नया ही प्रोडक्ट आ जाता है जो आपके फेवरेट ऐप बन जाता है। वो मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमर्स 3 साल पहले था ही नहीं, ठीक है। Yeah. वॉलेट्स आज से 10 साल पहले नहीं थे। राइड शेयरिंग कैब बुक करना वो 15 साल पहले नहीं नहीं थे। था। इंडिया में हर 3 से 5 साल में ऐसे मल्टीपल सेगमेंट्स ओपन अप हो रहे हैं जो पहले कभी थे ही नहीं। अब जैसे क्विक हेल्प आ गया है, लाइक अब इंस्टेंट Snapit. हाँ स्नैपइट है, प्रॉन्टो है, ये एक नया ही डोमेन आ गया जो आज से 2 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो हम लाइक कि इंडिया में ना सिर्फ कंपनी नहीं बनती है, इंडिया में सेक्टर्स बन रहे हैं, सेगमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, लाइक कैटेगरीज क्रिएट हो रही हैं। एक ही कैटेगरी पे 10-10 कंपनीज होती हैं। आई एम लाइक द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर इन इंडिया in absolute terms probably, like overseas might be still larger, but at the rate of growth that opportunities are happening in India, I don't think there is any other country. And now यार आज से 20 साल पहले पता है अभी जब मैं कॉलेज में गया था ना, तो 8 लाख रुपए की CTC लगी थी मेरी, और मैंने बहुत बहुत तगड़ी पार्टी दी थी, Hmm. बिकॉज नहीं लगती थी यार। मतलब उस टाइम पे ना एवरेज CTC 5-6 लाख से लगता था IITs में भी, ठीक है। एंड मतलब हाई एंड पे जाओगे तो आपको 12-15, मतलब जिसकी 12 लाख की CTC लग गए, वो हमें तो लगता था कि सबसे बेस्ट है। हमें लगता था वो ग्रेजुएशन पे मर्सिडीज लेगा, ठीक है। इतना रेयर होता था वो। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे, लाइक हमें पोलैरिस में मैं बताऊंगा पोलैरिस के स्टैट्स भी थोड़े से, बट इन इंडिया इफ यू बिल्ड अ गुड सक्सेसफुल करियर ओवर 5-7 ईयर्स, like 70-80 lakhs jobs are very Very common, achievable. Yeah. very common. But मतलब 50 lakh क्रॉस करना तो आई थिंक एवरीबडी शुड डू। इफ somebody is not crossing that 50 lakh benchmark within let's say 10 years of their graduating out, so they need to uh, it's not that they've done bad, but they could do better. And especially आज से 10 साल पहले वाले graduates को हटा दो आप, especially people who are graduating today, like a lot of them will enter into that 50 lakh category very quickly, very quickly, Yeah. especially in technology. So I'm like कि 50 lakh in India is a great, like इंडिया की यूएस की परचेसिंग पावर पैरिटी इज 4 times ऑफ इंडिया। इंडिया में 50 लाख बनाना मतलब यूएस में 2 करोड़ बनाना। Absolutely. बिल्कुल आप बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो बहुत इंडिया ज़्यादा में। चीज़ें कर सकते हो। योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज फार लेस, योर इमोशनल फुलफिलमेंट इज मच हायर, योर अवेयरनेस अबाउट द जोग्राफीज, योर नेटवर्क इज फार मोर डेवलप्ड हेयर, एंड योर लाइफ स्टाइल इज स्टिल द टॉप ऑफ द क्लास। मतलब ये यूएस में नहीं हो सकता यार कि अभी आपको यू वांट समथिंग एंड यू विल गेट इट इन 15 minutes, और यू प्रॉब्ली get access to like a lot of other things Yeah. in life. So I think international is still a good option. It is not as great as it was, and it is only valuable for people who get into those Ivy colleges or the top 10-15. तो आपका स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, वॉटन में, इस टाइप की जगह पे हो रहा है ना, तो आई थिंक यू शुड गो एंड टेक, मतलब बिकॉज वो पहला पॉइंट जो टैग है अगर वो सॉल्व हो रहा है तो उससे ठीक है। टैक्स सॉल्व हो रहा है तो कर लो इंटरनेशनल थिंग। बट अगर लाइफस्टाइल सॉल्व करने के लिए कर रहे हो या ये एम्प्लॉयमेंट सॉल्व करने के लिए कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी सॉल्व करने के लिए कर रहे हो, तो यार बहुत ही मुश्किल है। मतलब एक्सपोजर आपको इंडिया में मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज इंडिया में मिल जाएंगी, लाइफस्टाइल आपकी यहाँ पे भी कंफर्टेबल होगी, एंड द फाइनेंशियल कॉस्ट, बिकॉज यार अवेक्ट आई टेल यू व्हाट हर्ट्स। इमेजिन यू आर गोइंग टू एन अंडरग्रेड प्रोग्राम स्पेंडिंग 200,000 USD, which is roughly 2 CR, Yeah. and 4 years later you don't even have a visa. You don't you don't have a visa, you are getting rejected from jobs because you are not American, you are not able to get fresher jobs because layoffs are happening left, right and center, and they are prioritizing their own people, and you have a flight back to India now with a 2 CR loan. Technically it is like going for a vacation that has costed you 2 crores. if you are a physics graduate, or if you are a computer science aspirant, or if you are pursuing mechanical engineering, आप जाके उन इंडस्ट्रीज में काम करो ना, so that you gain experience, because if you work in a McDonald's, सिर्फ पैसे मिलते हैं और कुछ you will only get $12 an hour. नहीं। Yeah. Then मतलब वो लोग तो उनके लिए you are a cheap labor, और वो cheap labor की तरह ट्रीट करते हैं। So बिल्कुल। I'm like यार financially independent होने का ये मतलब नहीं है, like financially independent होने का ये मतलब नहीं है कि आप
पैसे को तुम्हारे आप लाइक व्हाट आर यू डूइंग इन ऑर्डर टू अर्न दैट मनी? The amount, I know a lot of people, some of my friends also, who had to work part time in US because they wanted to cover their living expenses. Yeah. I'm like, yeah, I understand that you work for 4 hours and you get $50, but I'm like, if you had put those 4 hours into your education, into your upskilling, into your learning, you would unlock an opportunity which is like 5,000. You would add $5,000 more to your CTC. आपकी वो 4 आवर्स की मनी वैल्यू ऑफ टाइम बहुत बढ़ जाता That there's a time value of money. है. Yeah. Sorry, there's a money value of time. And that is just 4 hours. Now imagine somebody is doing this for 6 months. Yeah. 5 days a week, 6 months. That is roughly like 26 weeks into 5 days. That's 130 days. 130 days into 4 hours is 520 hours. Yeah. 520 hours आपने बेसिकली ये कर दिया. आपके $12 के हिसाब से क्या बने? आपके $6,000 बने. वो आपके स्पेंड भी हो जाएंगे क्योंकि यू हैड टू बाय समथिंग और यू हैड टू टेक एक्सपेंसेस. बट इफ यू हैड डन 500 hours ऑफ एनीथिंग, मैं कह रहा हूँ 500 hours जिम में चल जाओ, आपके एप्स बन जाएंगे. 500 hours गिटार बजा लो, आप टॉप 1% में आ जाओगे. बिल्कुल. आप 500 hours कोड कर लो, आप एक प्रोफेशनल कोडर बन जाओगे. 500 hours अपनी एजुकेशन में कुछ भी कर लो. यू लाइक इफ यू कोड फॉर 500 hours, you will be so good that you will get a 100,000 CTC in US in a software development role. So what is that money value of the time that you are actually spending? But if you go there, because it has become very expensive and dollar will keep getting stronger, and a lot of students also have this hesitation of asking their parents, Yeah. तो ultimately they end up. करना ही पड़ता ये डार्क रियलिटी है, ये बहुत बड़ी डार्क रियलिटी. मतलब एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस, यार आप जाके ना, तो जब सबको ना कनाडा जैसे बड़ा सेक्सी प्लेस लगता है लोगों को, लाइक इफ यू आर फ्रॉम पंजाब एंड Canada had a very easy PR route till 1 or 2 years back. You had to spend like some exact number of days, याद नहीं मेरे को, but it was a very easy route. Canada tightened their thing 1-2 years back, and if you go and see the reviews of Canada students over the last 2 years, painful है. बहुत पेनफुल है. Yeah. मतलब पता है वो ऐसी सिचुएशन में कि वहाँ वो रह नहीं सकते, वापस आ नहीं सकते. वहाँ रह नहीं सकते क्योंकि उनके लिए जगह नहीं है, और आएंगे तो जो सपने देखे थे वो सारे टूट जाएंगे. और फैमिली पे जो फाइनेंशियल बर्डन, मतलब वही वाली बात है, वहाँ पे खुद से आंख नहीं मिला सकते और यहाँ पे अपने फैमिली से नहीं मिला सकते. दे आर स्टक, एंड दैट इज द रीजन आई सेड कि वहाँ पे जाओ ना फिर. बट द मोमेंट यू गो देयर फॉर अ वीक, यू विल गेट टू सी दीज पीपल, एंड इन पर्सन दे विल टेल यू एवरीथिंग. Yeah. So I'm like, if you get into the top 10-15 universities in the world, I think it's very worth it to go there, because the kind of people you'll meet, the kind of people you'll learn from, the kind of inspirations you'll get in your own batches is phenomenal. It's fantastic. And that is like at Polaris also we take a lot of care in who our peers are. पूरी कॉन्वर्सेशन वहीं पर आकर घूमती है कि क्योंकि हम एज इंडियन सिर्फ दिखाने के लिए शायद ज़्यादा चीज़ें करते हैं, तो फिर हम इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं. अब जब हम एजुकेशन को 100 साल पहले देखते हैं, अगर हम मग को देखें या माइक को देखें या कैमरास को देखें, सब में बहुत एवोल्यूशन हो गया. लेकिन जब एजुकेशन क्लासेस देखते हैं, हम पढ़ते कैसे हैं, तो एक शायद 1930s की क्लास और 2020s की क्लास सेम दिखती है. प्रॉबेबली डिज़ाइन बेटर होगा, लेकिन पढ़ाने का तरीका सेम है. तो अब इन दिस कॉन्वर्सेशन वी आर सेइंग दैट ट्रेडिशनल कॉलेज मॉडल इज आउटडेटेड. देखो उन्होंने इंफ्रा से कोई शिकायत नहीं है, वो इंफ्रा बहुत सही है कि यार एक क्लास है, उसमें देयर इज समबडी हु इज टीचिंग, देयर इज अ ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड एंड देयर आर 100 किड्स. इट्स फाइन. व्हाट मैटर्स इज हु इज टीचिंग यू, what are they teaching you, Yeah. and what do you want to learn. If these three things are not in sync, for example, मेरे को जैसे I realized midway during my college कि यार I want to do something in business, but I'm sitting in an engineering college, so the person who is also teaching me is also coming from, let's say, a science background, and what they are teaching me is how to like, because all of professors in IITs are PhDs and they're very respectful, they're very high standard academicians. So they're teaching me stuff which will be required probably during our PhDs. They're teaching that in engineering school, where most of the people are actually wanting to do software jobs, into a student who is actually thinking अभी तो सॉफ्टवेयर भी नहीं, को तो बिजनेस करना है कुछ लाइफ में, या तो MBA करेंगे या कुछ और करेंगे. तो सोचो ना कितना डिटैच्ड है, और सब सही है. द पर्सन हु इज टीचिंग, ही इज कमिंग फ्रॉम देयर ओन, ही और शी इज कमिंग फ्रॉम देयर ओन वैंटेज पॉइंट, बिकॉज ऑफ कॉलेज साइंस का है तो इसलिए वहाँ पे साइंस ही पढ़ाई जाएगी. बट एंड द स्टूडेंट इज नॉट वांटिंग टू स्टडी एंड चेजिंग सम अदर ड्रीम, बिकॉज so all three are right in themselves, but as an ecosystem it is absolutely unproductive. So I think what matters is that one, you should, and that is like, for example, Polaris mein like 2 choices that we took. For example, I know that anybody who pursues computer science, वो लाइफ में क्या करेंगे आपको बताता हूँ. आज से 5 साल बाद या तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, या फिर वो प्रोडक्ट डिज़ाइन UI UX में कुछ करेंगे, या फिर वो रिसर्च में चले जाएंगे, टेक में हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं,
या फिर वो एक स्टार्टअप फाउंडर बन जाएंगे जो एक टेक कंपनी के फाउंडर होंगे, या फिर लेट्स से वो टेक कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे, शायद कुछ ऐसा करेंगे, है ना, ऐसे ही कुछ टेक से, या फिर टेक इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे कि यार वीसी में चले गए, प्राइवेट इक्विटी में चले गए, एमबीए कर लिया और फिर टेक इन्वेस्टिंग की साइड चले गए. एंड आई एम वेरी ओके विद दैट. आई वाज लाइक यार पोलारिस इज नॉट अ कोडिंग स्कूल, पोलारिस इज नॉट अ ट्रेनिंग कैम्प कि तुम यहाँ पे आओ और कोड करो और फिर तुम्हारे 4 साल बाद जॉब लग जाए. आई वांट आवर किड्स टू हैव बिल्ड अ वेरी गुड टेक करियर. अब वेदर इट इज hardcore coding or product design or whether it's entrepreneurship or tech content creation, I'm okay with all of them. And I realize that it's not just about employability that is important to them. Employability plus exposure plus extracurriculars plus their persona plus their overall worldview, all of that is very important. So we said कि यार 2 चीज़ें करेंगे हम इस पे. तो सबसे पहले हमने कहा कि यार अब ये हम तुम कुछ भी करियर पुश कर लो लाइफ में, पिक कर लो. The first thing required is you will have to become a great coder. Yeah. Because you cannot become a startup founder without becoming a software developer. It's like saying कि यार मेरे को इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनना है. बट मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता. नहीं हो सकता. मतलब बन भी जाओगे तो टेक नहीं पाओगे. मतलब ठीक है. तो इट्स अ नेसेसरी नॉट सफिशिएंट थिंग. लाइक लर्न नोइंग हाउ टू कोड इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. यू विल हैव टू डू मोर. सो वी सेड कि यार ये तो हम सबको सिखाएंगे कि हाउ टू एंड नॉट जस्ट कोड, हाउ टू बिल्ड प्रोडक्ट्स. लाइक पेपर पे कोड लिखना वर्सेस एक प्रोडक्ट लाइव ले जाना इज आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स. सो वी सेड कि यार वन एवरीबडी हैज टू लर्न कोड. एंड हमने कहा कैसे लर्न करेंगे. आई सेड कि यार all learnings aside, the highest form of learning is practice. Immaterial, like if you want to learn code, seeing video lessons of learning how to code or sitting in classrooms on how to code is not going to help you beyond a point. Yeah. The only way to learn how to play guitar is to play the guitar. So we said, यार code तो day one पे करना होगा. I am very inspired by a philosophy called 10,000 hour rule philosophy. वो कहते हैं कि यार तुम 10,000 hours अगर जिंदगी में कुछ भी कर लोगे तो तुम दुनिया के टॉप 1% में आ जाओगे. तो मेरा उसका रेडिएशन ये है कि अगर तुम 1,000 hour कर लोगे तो शायद टॉप 10% में आ जाओगे. मैं कहा ठीक है यार. तो अगर किसी ने 1,000 hours भी कोड कर लिया so they will be in the top 10%. And unlike competitive examinations, the world has enough opportunities where like top 10% also get good outcomes. So we said यार we want our kids to like code for 5,000 hours during 4 years, but first year में तो 1,000 hours करने ही करने हैं. हमने कहा कि 1,000 hours करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिन के 3 से 4 घंटे कोड करना पड़ेगा. So we said यार all the classes that will be in the morning, which is fine, but second half में the only thing kids are expected to do is to just code. Okay. And day one of the classrooms, their consoles are open, their compilers are set up. Most kids on day one at Polaris actually write code. और ये it is done intentionally. So पहले में था कि नहीं एक हफ्ते का थोड़ा ब्रिज प्रोग्राम दे देते हैं, थोड़ा ऑनबोर्डिंग दे देते हैं, थोड़ा ईज आउट. नो, इट्स लाइक नो, दे हैव टू नो दैट writing code is a skill that they absolutely should know. Yeah. And if you have to do that, there is no reason of procrastinating on top of it. So on day one, like everybody is told that this is what you need to do. A lot of kids actually, Lead Code नाम का एक प्लेटफॉर्म होता है, डे वन पे वो अपना लीड कोड खोलते हैं और छोटा सा ही चाहिए, चाहे वो 2 लाइन ही लिख के जाए कोड की, बट वो मतलब शगुन का कोड लिख के जाते हैं कि यार हाँ नाउ वी आर ऑन टू दैट जर्नी. सो दैट्स द फर्स्ट choice that we took, that every day like half of their day should actually be spent in real life coding. Yeah. So that by the end of year 1 itself 1000 घंटे कोड कर लोगे तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इंडस्ट्री में तुम्हें. और एक बार तुम्हें इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिल गई, तुम्हारी इंटर्नशिप हो गई, स्टाइपेंड मिल आनी शुरू हो गई, तो फिर तुम्हारा नेटवर्क बन जाएगा, क्रेडिबिलिटी बन जाएगी, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, तुम्हारी लर्निंग बन जाएगी. फिर वहाँ से तो तुम मतलब एक चमकता सितारा हो. लाइक दैट फर्स्ट ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड, विच इज कॉल्ड फंक्शनल लर्निंग. ठीक है, आई विल ऑल्सो टेल दिस इज कॉल्ड फंक्शनल लर्निंग. ठीक है, तो हमने फंक्शनल लर्निंग तो ऐसे इंट्रोड्यूस करी. सेकंड समथिंग विच इज आई कॉल अगेन इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमने क्या करी, क्या देखो, एंड अगेन मैं बताता हूँ, लर्निंग 4 टाइप्स की होती है. सेल्फ लर्निंग होती है, पीयर लर्निंग होती है, इंडस्ट्रियल लर्निंग होती है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है. सेल्फ लर्निंग जो आप यूट्यूब पे देख के करते हो या क्लासरूम में मतलब सुन रहे हो लेट से. पीयर लर्निंग लाइक इज मोर अबाउट लोगों से आप साथ में काम करके सीखते हो. हाँ, अपने बैचमेट्स का ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो. ठीक है. इंडस्ट्रियल लर्निंग होती है जब आप किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप करते हो. और फिर होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए क्या होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है जब वो जाते हैं किसी एक ऐसे हैकेथॉन में जहाँ पे 200 डेवलपर्स आए हुए हैं और वो प्रोडक्ट, हैकेथॉन मतलब एक कोडिंग कॉम्पिटिशन टाइप से होते हैं जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट जाते हैं. ऐसे समझ लो कि यार एक लाइव आर्ट गैलरी है, बहुत सारे पेंटर्स एंड आर्टिस्ट जाएंगे वहाँ पे और वो सब अपना पेंट करेंगे. कुछ उनको कोई थीम दी जाएगी कि आज नेचर थीम है हमारी, सब लोग अपना पेंटिंग पेंट करेंगे एंड देन द जूरी विल डिसाइड कि किसकी पेंटिंग सबसे सुंदर है. तो जैसे अगर जैसे ही पेंटर्स के लिए होता है, ऐसे ही लेट्स से आर्टिस्ट के लिए होता है, जैसे ऐसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए होता है. सो हैकेथॉन्स आर वेयर लाइक पीपल गो, आप वो नए लोगों से मिलते हो, वहाँ पे टीम्स बनाते हो अपनी, फिर आप टीम्स में कुछ लाइव 12 आवर 24 आवर्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, फिर आप जाके स्टेज पे पिच करते हो एंड इफ योर प्रोडक्ट इज गुड यू विन प्राइजेस. तो ऐसे हैकेथॉन्स होते हैं. फिर ऐसे टेक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ऐसे टेक की समिट्स होती हैं, ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं. ऐसा कि जब तक आर किड्स डोंट लाइक पोलारिस किड्स, जब टिल द पॉइंट दे गो इनटू दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, दे विल नॉट बी एबल टू लर्न समथिंग. अदरवाइज तो वो अपने या तो अपने रूम में बैठे हैं या अपने हॉस्टल में बैठे हैं या अपने कैंपस में बैठे हैं. तो वो तो एक
फाइनाइट प्रीमिसेस के अंदर ही है ना, Hmm. टिल द पॉइंट एन 18 ईयर, बिकॉज जब एक 18 साल का बच्चा एक 35 ईयर ओल्ड ऊबर के इंजीनियर से मिलता है, लेट्स से, या 30 ईयर ओल्ड गूगल के इंजीनियर से मिलता है, देन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, द काइंड ऑफ लर्निंग दे गेट, द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन दे गेट, कि भाई इफ वी डू वेल इन आवर लाइफ वी कैन बिकम समथिंग लाइक दैट, Yeah. दैट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, इट कांट बी टोल्ड. Yeah. इट्स लाइक ये ना, एक एस्पायरिंग क्रिकेटर है, वो अपने बचपन में अगर विराट कोहली से मिली है तो लगेंगे कि यार पापा मुझे बड़े होकर ऐसे ही बनना है, एटलीस्ट ही विल एम फॉर दैट मच. बिल्कुल. वी लाइक वी आल्सो वांट टू क्रिएट दोस एस्पिरेशनल मोमेंट्स फॉर आवर किड्स very early in their life, and they will only meet these people when they go to hackathons, tech summits, conferences, events and all, and which is what I call experiential, because you meet new people, आपकी networking भी होती है, आपकी learning भी होती है, आपको आपके inspiration भी मिलती सपने भी अनलॉक होते हैं और बहुत चीजें और होती है ना. तो and आपका more importantly now you are in touch with those people, so you Yeah. also have their contact and you can text them whenever you are in. We said यार Polaris will be the, we will, like, how do I say, we said Polaris will be the center of experiential learning in Bangalore. So we said कि यार जितने hackathons हो सकते हैं हम अपने कैंपस में करेंगे, जितने इवेंट्स हो सकते हैं हम अपने कैंपस में करेंगे. हमारे बच्चे अगर हर पॉइंट पे इंडस्ट्री पे नहीं जा सकते तो हम इंडस्ट्री को कैंपस के अंदर लेकर आएंगे. लाइक बिकॉज if they feel occupied or limited in order to of if they feel limited by their ability to go to these multiple events, imagine what would happen if those events and those brands and those communities start coming to the campus. And that is what we do very very focusedly. And we are like, ये जितना क्लासरूम तुम्हारा पार्ट ऑफ करिकुलम है उतना ही क्लासरूम के बाहर जो हो रहा है दैट इज योर पार्ट ऑफ करिकुलम. एंड टू फैसिलिटेट दैट व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी डू इज लाइक, फॉर एग्जांपल सितंबर में देयर इज अ कंपनी कॉल्ड Replit, वो Yeah. मतलब $9 billion की, $8 or $9 billion की कंपनी है, लाइक इट्स लाइक 70-80,000 CR की कंपनी. इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स. द फर्स्ट टाइम दे डिड अ हैकाथन आउटसाइड यूएस, द फर्स्ट टाइम दे हैव नेवर डन, वो सारे हैकाथॉन्स उनके यूएस में, they decided to do it in the campus of Polaris. Wow. And that hackathon was attended by more than 1,200 students from all over the country. And it was a 36-hour hackathon. Friday रात को midnight पे शुरू हुआ है, Sunday सुबह खत्म हुए. And like now imagine 1,200 kids from all over different colleges and universities in the country have traveled so far, and now vibe coding. Vibe coding is a new form of coding. Yeah. It's like AI coding. It's called vibe coding, जिन लोगों को नहीं पता. तो AI coding कर रहे हैं. अब सोचो like a lot of Polaris kids are getting to, क्योंकि Polaris kids कुछ फर्स्ट ईयर के होंगे, कुछ सेकंड ईयर के होंगे, लेकिन जो बच्चे आए हुए हैं वो नॉर्थ से भी आएंगे, वो साउथ से भी आएंगे, वो फर्स्ट ईयर के भी होंगे, फोर्थ ईयर के भी होंगे, कुछ एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी आए हुए थे. लाइक इट वाज अ ग्रेट थिंग. Yeah. And it got recognized as Asia's largest ever offline tech hackathon Wow. that has taken place, and it took place at Polaris. Like we got rewarded by Asia Book of Records for that. Great learning. Like the Polaris team actually stood second. फर्स्ट आई थी कोई, मेरे को कॉलेज नहीं याद है, फर्स्ट वहाँ की टीम आई थी, सेकंड Polaris की आई थी. बट मटेरियल की जीते नहीं जीते, वो तो सब सेकेंडरी है. मैं पॉइंट इज दैट एक्सपीरियंस किया. Yeah. कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस कर लिया, तुम्हें एक रियलिटी चेक मिल जाता है. जब 1200 बच्चे देश भर के आते हैं ना, तुम्हारे कैंपस में बैठ के तुम्हारे सामने कोड करते हैं और तुम्हारी टीम से कम्पीट करते हैं, तो तुम्हें भी रियलिटी मिल जाती है कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, लाइक व्हाट इज रियली हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट आर अदर ब्राइट किड्स एक्चुअली डूइंग, बिकॉज योर कॉम्पिटिशन इज नॉट विद द लैगर्ड्स एंड द फेलियर्स. Yeah. योर कॉम्पिटिशन इज विद द टॉपर्स एंड द स्टड्स एंड द स्टार्स ऑफ अदर कैंपसेस ऑल्सो. सो वो किया. उसके बाद ऐसे फिर और छोटे छोटे बहुत सारे हैकाथॉन्स हुए. फिर देन दिसंबर में एमरजेंट एक कंपनी है which has Another vibe coding platform. another vibe coding platform. वो इंडिया का आंसर टू दिस. आई थिंक Sarvam.ai and Emergent are the two most popular AI company brands. And we did a hackathon with Emergent in December. Wow. And that was a very that was not for students for other campuses. Like that hackathon was primarily done for seasoned developers. Okay. People who have 2-3 years of work ex, they were coming into the campus. But obviously because it was happening in Polaris campus, like our students got a chance to participate as well as build as well as network with these seasoned developers. Yeah. तो कुछ बच्चों ने जाके उन्हीं, तो सोचा भाई 3 लोगों की टीम है जिसमें एक गूगल का इंजीनियर है, एक लेट्स से फ्लिपकार्ट का इंजीनियर और एक 18-year-old Polaris kid है, because now he's in front of them. So that 3-4 hours of vibe coding together and he learning from them, it's like you are learning from people who have already done what you want to do next. Yeah. Live achievers basically. So that was a great learning experience for them. And because a lot of kids were also involved in the organizing committee of this, then they also get to chat with them. And when you chat, you exchange numbers, you build contacts, you have your network, you tell about yourself. You're also talking to them कि यार बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है 18-19-year-old kids का to these 30-year-old kids कि सर हमें भी मतलब we also want to become a software developer in a great company by 25. Can you give us the roadmap to do that? Now imagine a 30-year-old person, existing like a reputed software engineer who has already done that path, is giving you that roadmap. What else do you need? Nothing better than that, right? And Yeah. there are so many engineers you can choose whoever. तुम्हें लगता है कि यार इससे मजा नहीं आ रहा तो चलो उससे जाके बात कर लेते हैं, उससे मजा नहीं आ रहा तो इधर जाके बात कर लेते हैं, right? तो you have your own choice. Similarly, January में what happened was even phenomenal. Like after Replit and उसके बीच में बहुत सारे और छोटे छोटे events भी होते रहते हैं. January में OpenAI, the company behind ChatGPT, Yeah. they came to the Polaris campus. Wow. And that was again a one-day event.
उसमें बहुत सारी टीम्स थी, ओपन एआई की भी टीम्स थी, पीक 15 की टीम्स थी, और एक दो एक्टिवेट एक फंड है एआई का, उसकी भी टीम्स थी। एंड ओपन एआई की खुद की टीम्स ने बेसिकली दे रैन लेक्चर्स ऑन व्हाट दे सी एज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई इज like that. Again, event was again not open for like you had to be selected in order to be able to access that event. It was a very high profile event, and not it was oversubscribed because it was happening in the campus. So many of Polaris kids actually got to witness that thing live. A lot of those kids actually were able to chat with the ओपन एआई टीम्स। ये वही टीम है जिसने चैट जीपीटी बनाया है। तो बहुत सारे बच्चों ने जाके उन टीम से बात करी कि सर आप चैट जीपीटी बनाते हो, ये करते हो, ओपन एआई एजुकेशन में और क्या कर रहे हैं हम, लाइक व्हाट डू वी नीड टू बिकम, हमें अगर एआई रिसर्च में जाना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंडिया में रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, किस टाइप के मॉडल्स पे हम काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, मतलब व्हाट इज द मोस्ट एडवाइज्ड पाथ टू बिकम एन एआई रिसर्चर और लेट्स से एआई सारे साइंटिस्ट। आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। और वो कहाँ से मिल रहा है? वो चैट जीपीटी की टीम से मिल रहा है। तो काफ़ी बच्चों ने फिर वहाँ पे साथ में फोटो खिंचवाई। वो उनके लिए एक फैन बॉय मोमेंट है कि उन्होंने तो अपनी इंडस्ट्री के लेजेंड्स को देख लिया। वो फोटोज उनकी फैमिलीज में गई होंगी, एंड दे वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी एंड दे वुड हैव फेल्ट वेरी इंस्पायर्ड। आई थिंक आपने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब अगर सिंपल टर्म्स में, इवन दो यू एक्सप्लेन के, बताना होगा कि 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉलेज मॉडल्स एंड न्यू कॉलेज मॉडल्स लाइक पोलरिस, तो क्या होगा 3 सिंपल टर्म्स? Your new age campuses में ना two things are very different. One, generally they are very vertical campuses. So generally they are like we are only doing 1 or 2 streams and not a lot of streams. So they're a little more focused, and faculties are, let's say, somewhat more industry linked than let's say traditional ones. ट्रेडिशनल के एडवांटेज में मैं एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज दोनों बताता हूँ। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक एडवांटेज आ जाता है। न्यू एज आर जनरली ऑल्सो more AI first than traditional. Okay. So I think, especially मैं बाकी branches पे तो I can't comment, but I think in computer science some new age campuses are like doing good. Like they're very intrinsically involving like AI in their entire curriculum, right? So I think, and again, like it's not for everybody. It's not for every new age campus. Some traditionals are also doing well. Some new age campuses are also. Whatever I say does not apply to everything, but in general, I've seen that new age campuses that are coming up, they are pretty vertically focused in a couple of streams. They're not like यार civil भी होगा, mechanical भी होगा, electronics भी होगा, computer science भी होगा. So that bouquet is comparatively lesser. So they're like more structured and focused around 1 or 2 streams. मतलब most of them are actually like 1 or 2 streams, which allows them to like focus on that particular specialization or branch a little more. It's not around कि सब कुछ करवा लेंगे हम. So which I think also helps them with the ability to attract relevant talent. Like कि if there's a computer science program, like should be taught by people who have coded and who know how who have cracked software interviews and stuff like that. So I think that is one advantage that obviously I see a lot of new age campuses. New age campuses also have the flexibility to choose their location, which generally they try to keep as close to ecosystem. So that's again, like you would see most of the new age campuses coming in like the metros of the country. Location is a big point. So they try to keep it close to the industry so that the access is far more established. But on the other hand, I'll tell you like what advantage traditionals have is that new age campuses are still a new thing. So the alumni network is not as much there. Like traditional campuses who are running for like 15, 20, 30 years, obviously the number of people who have passed out from there are far higher, and your probability of finding an alumni is much easier. So obvious, and new age campuses will get there in another 5-10 years or so. But that is one advantage that they have. आई थिंक अब आपने इतना ब्यूटीफुली सारा एक्सप्लेन किया, एंड जो भी ये देखेगा दैट शुड हेल्प अ लॉट टू द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और द पेरेंट हु इज वाचिंग दिस. सो थैंक यू सो मच मुकुल. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. Thank you, Avyakt, and thank you for having me.